Hey, hello guys, how are you all? Hope you guys are doing good, and we are back again after a long time. But we won't be disappointing you this time because we have a very special guest, the most amazing, the most beautiful Sukhda Deshpande Khandekar with us. Sukhda Deshpande Khandekar is a Maharashtrian actress, and she has been very famous for her roles and acting in most of the Marathi movies and serials. Also, she got her fame from Sanjay Leela Bhansali's Bajrao Mastani. So today she is with us, and we would be interviewing her, asking her great questions, and would be having a great conversation with us. So we have Umesh with us today, and he would be a host for the day. So guys, tighten your seatbelts and be curious to learn more about her and her journey into the films. Yeah. Hi, Sukada. I'm Umesh. Hi, Yeah. hi, I'm Bhushan. yeah. Glad to meet you. Same here. Yeah. Can you just a few words about your journey? Oh God, I shouldn't that be the last question? Few words about my journey. I would describe my journey as most exciting and adventurous and um beautiful. Absolutely beautiful, unexpected. I think that's something which would be any artist's journey. Okay, great. Okay. Why you want to become an actress? Okay, nice question. Very honestly, as a child, I thought I used to dance, I used to sing, I used to participate in elocution competitions, and I was that kind of student who used to participate in every competition and used to win a lot of prizes and everything. And back then, it used to be like every single day my ambition used to change, that and change as in, trust me, it used to vary from a conductor to astrologer or anything, because I have always been a very curious person. I like understanding what a person does, what are different fields of work. There used to be times wherein मैं कई बार बैठ के मुझे बड़ा मजा आता था, चोहार जो होता है ना, कि वो किस फिनेस से वो कैसे सिल देते हैं, मुझे वो भी बहुत कमाल का लगता था. सो आई थिंक वो कुछ अभी भी रिटेन हुआ है मेरी पर्सनालिटी में. आई ऑलवेज फाइंड skillful jobs very very exciting and respectful. तो back then तो ऐसा कुछ decided नहीं था. As a child, I started learning Kathak when I was 5 years old, and so I was dancing. Then I was going to school, and just that it was just about it. यही मेरा schedule होता था. Um, it used to be in summer holidays or Diwali holidays, जब acting workshops जो बच्चों के लिए होते थे, जो मेरे पेरेंट्स मुझे एनरोल करवाया करते थे उनमें, और तब वो मैंने कुछ किए थे. तो जब मैं बचपन में, जब मैं बहुत छोटी थी, तब मुझे मिस यूनिवर्स बनना था. I don't know that. Yeah, so there was actress was nowhere on my radar. Academically, I'm a clinical psychologist. I've done my master's in clinical psychology. So पढ़ाई, acting, इवेंचुअली कॉलेज आया तो वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स और वो सारी चीज़ें. सो और ये सारे कुछ चीज़ें तो थी जो पैरेलल ट्रैक्स पर चलती रही. एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट I won't be able to practice my in the field of clinical psychology, because अगर मैं artist हूँ और if my calling is to perform, तो ये दोनों चीजें hand in hand नहीं जा सकती, because my schedule needs to be very very disciplined if at all I choose to be a clinical psychologist. It cannot be as haywire as an artist's life is, and hence I decided that I won't be practicing anymore, and then I'll have to focus on my dance and acting. Now coming to your question, I think my simple answer would be, I just love to be somebody else, to the core of the person's being. जब आप खुद को एक्टर कहलाते हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट्स के जरिए कई सारे रोल्स, कई सारे कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं, एंड
and I take all of my characters very seriously. Be it मैं किसी 1.5 मिनट का एड शूट कर रही हूँ, या मैं थिएटर कर रही हूँ, या मैं फिल्म कर रही हूँ, या मैं टेलीविजन कर रही हूँ, या मैं चाहे जो कर रही हूँ. As an actor, the minute I decide कि I have to play a particular part, the whole process is very very fascinating for me. फिर मेरी बैक स्टोरीज बन जाती हैं जो मैं खुद बनाती हूँ. um, of course with that has to go in line with the character and the story of the project, but then I dig really really deep, because that's what it is. I like to be somebody else, so if I like to be somebody else, तो मैं पूरी तरह से उसमें जान झोंक कर मैं वो बन जाती हूँ. uh, and just that just gives me a kick, a very very immense happiness, I would say. And हर वो कैरेक्टर वो प्रोजेक्ट खत्म होते होते मुझसे जुड़ जाता है, इज व्हाट आई बिलीव. वो मेरे अंदर समा जाता है और कोई एक टुकड़ा मेरा रह जाता है उसमें. एंड आई बिलीव ऑल माई कैरेक्टर्स have been making me a better person, a lot better person than I used to be. Okay, finally, psychology student become an actress. Yeah. Yeah, you said before that you learned Kathak in 5 years old. How your Yeah. parents, how they supported? Oh my God, like anything. I come from a family of artists. My father was a painter and a sculptor. We lost him a few years ago. My brother is a painter and an architect, a very celebrated one. He is based in Bahrain. And my mother is Sangeet Visharad. She taught music for 30 long years as a teacher. एंड नाउ माँ की और मेरी आकार नाम से एक इंस्टीट्यूट है जहाँ वो म्यूजिक सिखाती हैं. सो आई वी आर अ फैमिली ऑफ आर्टिस्ट्स, एंड वी we just know what passion means, to the point that my father was a painter and a sculptor, my mother was a singer, and I was a dancer or an actor. Matlab, they never pushed me to become a painter or a singer, but they recognized what kind of art I'm inclined towards. And वो ढूंढ कर उन्होंने मुझे वो ना सिर्फ परसू करने दिया, बट इट वॉज immense support. I just cannot believe in today's times. अगर अभी मेरी वही एक कांस्टेंट ड्यूटी है कि मुझे मेरे बच्चे को वो उस क्लास के लिए लेके जाना है, उस क्लास से पिकअप करना है. ये मेरी माँ ने 15 साल किया होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना काम, हर अपनी चीज संभाल कर. एंड आई थिंक कि वो सिर्फ ना सिर्फ एक एज अ चाइल्ड, जब हम बच्चे होते हैं हम हमारे पेरेंट्स को देखकर काफी सीखते हैं. एंड तो ये उनसे सीखा, ये जो फॉलोइंग ऑफ पैशन है, ये जो सिंसियरिटी है, ये जो हर छोटी चीज को एक हद की शिद्दत तक पूरा करना, चाहे टूट जाओ, कट जाओ, मर जाओ, वो पूरा करना, बीच में नहीं छोड़ना. ये हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरु हमें सिखाते हैं. सो आई वॉज रियली रियली ब्लेस्ड to have this kind of family. And at such an early age, my guru's name is Rekha Nadgowda. वो नासिक, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नासिक. कीर्ति कला मंदिर नाम है मेरे इंस्टीट्यूट का, जहाँ मैंने सीखा था. और आज जो भी आता है, आई वुड से मेरी माँ, मेरी ताई, ये 2 औरतें हैं जिनसे अगर मुझ में रत्ती भर भी अगर ग्रेस होगी तो it's because of them. Okay, yeah, I think you came from a artist family. That's why they know the value of a craft. So that's Absolutely. why such a great family you have. I know, I'm blessed. Thank you. How you started your career in acting? Like I said that, like I don't. It was just happening in a process, be it theater, because even now, if you look at the body of work that I'm doing, it is all sorts of work. As in, it is theater. If you talk about theater, then it is Marathi theater as well as Hindi theater. It is intimate theater. It is a theater like a commercial theater also, and then there is also Broadway theater.
ये थिएटर की सिर्फ बात हो रही है, सो इसी में इतना कुछ अलग 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 कर लिया. देन आई डू एड्स ऑल्सो, आई डू टेलीविजन ऑल्सो, आई डू फिल्म ऑल्सो, बोथ इन हिंदी एंड इन मराठी. सो आई थिंक कहाँ शुरू हुआ समझना मुश्किल है, क्योंकि ये हर छोटी हर एक चीज जो मैं करती आ रही थी, एक से दूसरा निकलता गया, दूसरे से तीसरा निकलता गया. पर अगर जो मुझे याद करना हो तो माय फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट एज एन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एज एन एक्ट्रेस इज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट. ये उर्दू लैंग्वेज में प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की एनजीओ के लिए बनाया जाता था. वुमेन एनजीओ दैट वर्क फॉर वुमेन. एंड इस प्रोजेक्ट का नाम था सिरात मुस्तकीम. तो हुआ शूट था अराउंड टाइम क्योंकि वो शूट का पायलट शूट था, और ये बड़ा ही मेरा चहेता प्रोजेक्ट है. ये बड़ा ही अजीब प्रोजेक्ट भी था कि इसके प्रोड्यूसर जो थे, ही वाज अ ब्रिटिश मैन. शूट हो रही थी पूना में, एक्टर्स मराठी थे और शूट कर रहे हैं उर्दू. मतलब वो बहुत ही हम सब एक है वाला जोन था उस पूरे प्रोजेक्ट का. पर बहुत ही प्यार से हमने वो किया था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि उनकी जो लीड एक्ट्रेस थी, इट वाज अराउंड दैट टाइम जब शायद वो बीमार हो गई थी या ऐसा कुछ हुआ था मिसहैप. एंड रातों रात दे वर लुकिंग फॉर अनदर एक्ट्रेस जिससे हु इज वेल वर्स्ड विद उर्दू. एंड तो मेरे हस्बैंड जो तब मेरे दोस्त थे, और सिर्फ दोस्त ही थे, तो उनको पता था कि मेरी आई लाइक उर्दू और मैं सुनना और बोलना पसंद करती हूँ. तो उन्होंने उनकी बात हो रही थी और उन्होंने सजेस्ट किया कि अरे आई नो दिस गर्ल एंड उसकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप एक बार सुन लो. एंड शी इज इन पूना, शी माइट बी अवेलेबल ऑन दीज डेट्स एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई. एंड सो दे कनेक्टेड विद मी. सो आई स्टिल रिमेम्बर हमारा कुछ ऑडिशन टेस्ट कुछ रात के 11 बजे हुआ था और दूसरे दिन सुबह 6 बजे मैं सेट पर खड़ी थी. माय फर्स्ट एवर को एक्ट्रेस वाज रोहिणी तय हटंगडी, एंड जिनके साथ हमने शूट शुरू किया था. एंड समहाउ वो शूट बहुत ही अच्छी रही, वो पायलट पास हो गया एंड वी गॉट द प्रोजेक्ट. एंड देन वी शॉट फॉर सेवरल मोर एपिसोड्स for the same series for next 4 years. So that was one of my first projects as an actor, I would say. Yeah. You just a jackpot. You just get a jackpot with international series. I mean international. Yeah, I must be very lucky. Most of the actors they start their career with short films and then television and then silver screen. But Yeah. directly jackpot with international film. आई थिंक इट इज हमारी इंडस्ट्री में ये कहते हैं ना कि बीइंग एट राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये जब भी किसी के साथ होता है द पर्सन हिट्स अ जैकपॉट. एंड हर एक की फिर अपनी जर्नी बन जाती है. आप कभी ऑन जॉब सीखते हैं, आप धीरे धीरे सीखते हैं. अगर आपकी अपॉर्चुनिटीज छोटी रही हैं तो वो भी अपने आप में अच्छी चीज है, क्योंकि फिर आप शुरुआत में जो मिस्टेक्स करते हैं वो ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंचती नहीं है. आप जब तक बड़े प्रोजेक्ट्स तक पहुंच जाते हो तब तक आप सीजनड हो जाते हो, तब तक आप समझ जाते हो खुद को हैंडल करना, यूनिट के साथ काम करना कैसा होता है. अगर आप कैमरा के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप स्टेज के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कर करके आप समझ जाते हैं. एंड देन यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ जब एक कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी रहती है. किसी की जर्नी ये रहती है कि कोई शुरू कहीं करता है एंड देन व्हेन द पर्सन लुक्स बैक सेज दैट ओह आई शुड हैव बीन बेटर. इट इज आई थिंक इट इज वो वही है कि इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहलाती है, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज चाहे जितनी हो आपकी, दिस एक्सपीरियंस नाम की जो चीज़ है जो वो आपको सिखाएगी, जो आप समझेंगे भी नहीं कि आप सीख गए. वो आप तब समझेंगे जब आप किसी जगह पे खड़े हैं और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपने कुछ कर दिया और देन आपने खुद ही को पूछा कि ये मैंने कैसे किया. तो जवाब है एक्सपीरियंस. सो आई थिंक वो है. तो मेरी जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी. हर एक की अलग होती है. Yeah, okay. In film industry, everyone have this. Do you faced any struggle in beginning of your career? I think listen, I think struggle is a very मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड, क्योंकि हर किसी के नजरिए में, हर किसी के
क्या हम कहेंगे, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपको क्या स्ट्रगल लगेगा, ये हर किसी की अपनी कहानी है. एंड इफ यू आस्क मी, देन एवरीबडी गोज थ्रू स्ट्रगल. मतलब किसी को अगर आदत है कि मैं मर्क, घर पे मेरे मर्क है और मैं मर्क से ही ट्रैवल करती हूँ, और किसी दिन मेरी गाड़ी बंद पड़ गई और मुझे रिक्शा लेना पड़ गया, किसी के लिए वो स्ट्रगल हो सकता है. एंड नोबडी शुड जज इट और डिमीन इट, क्योंकि कोई अपने एक्सपीरियंस से नीचे उतर कर कोई चीज किसी को करनी पड़ जाए, वो उसी के लिए स्ट्रगल कहलाती है. सो आई बिलीव स्ट्रगल तो है ही, स्ट्रगल इज फॉर एवरीबडी. किसी का, हर एक का स्ट्रगल अलग हो सकता है. जैसे फॉर एक्टर्स, आई बिलीव आर्टिस्ट स्पेशली, हमारी हमारी जिंदगी का कोई शेड्यूल नहीं होता. uh, आप कब उठेंगे, आप कब सोएंगे, आप क्या खाएंगे, कितने बजे खा पाएंगे, ये किसी का आप सेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम ऐसा है. एंड दैट गोज टू एवरी सिंगल आर्टिस्ट. हमारे ट्रैवल टाइम्स अलग होते हैं. हम सोते कभी एक, हम कोई उठते कभी है, मतलब अलग अलग लोगों से मिलना, हर नया प्रोजेक्ट. मतलब मुझे हमेशा ये लगता है, तो कोई पूछता है तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे आर्टिस्ट बंजारों की तरह लगते हैं. कि एक प्रोजेक्ट से, किसी टीम यूनिट से मिले, उनके साथ कुछ वक्त बिता लिया, लगाव भी हो गया, और जब तक लगाव हो गया, बिछड़ने का वक्त आ गया, और फिर आप चल दिए अकेले अपनी जर्नी पर, कि किसी और वो ट्रूप ऑफ बंजारों को आप मिलने वाले हैं. ये स्ट्रगल है इंसानों के लिए. आई बिलीव जिन लोगों का सेट रूटीन होता है, जिन लोगों का के करियर्स, जिनके काम 9 to 5 हैं, उनकी भी जिंदगी में कम स्ट्रगल नहीं है, आई एम श्योर. पर उनके कुछ चीजें जो सेट हो जाती हैं, इट इज साइकोलॉजिकल. मेरी डेस्क, मेरे बगल के डेस्क पे कोई बैठता है जिसको मैं जानता हूँ या जानती हूँ. मेरा एक बॉस है. इवन शुरू में टीदिंग पीरियड होता है, जो अब मुझे समझ आ गया इससे डील कैसे करना है, तो इवेंचुअली मैंने डील कर लिया. हमारे साथ वो होता नहीं, आर्टिस्ट्स के साथ. क्योंकि किसी किसी को समझ में, जब तक हम किसी को समझे, तब तक हमारा काम खत्म होके हम वहां से निकल लेते हैं. सो आई थिंक हर आर्टिस्ट का स्ट्रगल होता है, और डेफिनेटली मेरा भी रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है. कभी फिजिकल स्ट्रगल्स रहे हैं, थकान और इंजरीज रही हैं, नींद पूरी नहीं होना, ये हो सकता है. पर आई बिलीव, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत लगता है कि बच्चों को ना, जब आप क्लासिकल फॉर्म्स की तालीम देते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांस हो, बहुत छोटी उम्र में ना, आप एक डिसिप्लिन समझ जाते हैं. आप खुद से आगे अपने काम को रखना समझ जाते हैं. एंड जब आप वो समझ जाते हैं, तब एक्चुअल फील्ड में उतर के जब काम करते हैं, तब वो आपको स्ट्रगल नहीं लगते. क्योंकि तब आप समझ चुके हैं कि मैं अगर 5 मिनट लेट पहुंचूंगी ना, तो आज ताई नाचने नहीं देगी. तो मुझे चाहे नींद सैक्रिफाइस करनी है या ब्रेकफास्ट स्किप करना है, मुझे टाइम पे पहुंचना है. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनकी आदत जब उस उम्र में पड़ जाती है, आपको इवेंचुअली जिंदगी में वो अप्लाई करना आसान हो जाता है. एंड देन यू, आई थिंक द एस्थेटिक्स ऑफ योर लाइफ एंड आर वेरी वेरी डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल. देयर इज अ सर्टेन ग्रेस टू योर लिविंग, टू हाउ यू कैरी योरसेल्फ. आपके कॉन्डक्ट में वो एक ग्रेस रहती है. सो आई वुड सजेस्ट, वो जरूरी है करना, जिसके चलते आपके स्ट्रगल्स आपको स्ट्रगल्स ना लगे, और आप इवेंचुअली जो काम कर रहे हैं वो आप अटमोस्ट एंजॉय कर पाते हैं. आपको मैजिक लगता है. एंड देन जनरली, क्योंकि इस वक्त आप पूछ रहे हैं तो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि माई फोकस इज ऑन मेरे काम से मुझे क्या जादू मैंने महसूस किया, देन वो करते वक्त मैंने क्या स्ट्रगल किया, मुझे नहीं याद. Okay, and now I get to know that what's the struggle is. Yeah, it's a great explanation about the struggle. Yeah. Uh, Sukuta, can you just tell me how you get the chance in Bajirao Mastani? I mean, how they casted you? That was another, I think, I happened to be lucky. There was this friend of mine, because it was मराठी बैकग्राउंड और वो सारा था उस फिल्म का.
उन्होंने महाराष्ट्रियन कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स से बेसिक कहा था कि अपने रेफरेंस के एक्टर्स के पिक्चर्स भेजो, एंड देन पिक्चर्स जब हमारे शॉर्टलिस्ट हो गए थे उसके बाद आगे की प्रोसीजर वाज टेकन फॉरवर्ड. तो देयर इज दिस फ्रेंड ऑफ माइन अश्विनी, जो शी इज बेस्ड इन पूना, अश्विनी परांजपे. तो शी हैड आस्क्ड मी फॉर माय पिक्चर्स इन महाराष्ट्रियन अटायर एंड शी सेड पिक्चर्स भेजो, किस चीज के लिए मैं बताती हूँ अगर शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं. एंड तो मैंने भेज दिए थे. उसके बाद मुझे पता चला कि ये बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए है. एंड मैं शॉर्टलिस्ट हो गई और मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया. पराग मेहता जो कास्टिंग डायरेक्टर है, इज अ जेम ऑफ पर्सन. एंड तो मैं ऑडिशन के लिए गई. ये जरूर है कि एज एन एक्टर मैं जब भी किसी भी काम के लिए किसी से भी मिलने जाती हूँ तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके जाती हूँ कि अगर मैं किसी डायरेक्टर से मिलने जा रही हूँ तो उस डायरेक्टर का इससे पहले वाला क्या काम है, फिल्म्स हैं तो कौन सी है, उनका एस्थेटिक सेंस क्या है, हाउ ही वर्क्स, उनकी चॉइसेस क्या है, ये मैं समझ कर जाती हूँ. एंड बिकॉज दैट रियली हेल्प्स मी टू गेट क्लोजेस्ट टू द पार्ट दैट आई एम बीइंग थॉट फॉर. तो जब मैं पाकिस्तान का ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया गया था, I was wearing a नौवार पैठनी जो मेरी शादी में मैंने पहनी थी. मैंने प्रॉपर हेयर स्टाइलिस्ट से को बुलाकर हेयर स्टाइल किया था, जिसे खोपा कहते हैं, जिसे चोटी ऐसी घूम के ऊपर आती है, जो आपने बाजीराव मस्तानी में देखा होगा. प्रेजेंटेशन मैंने ऐसी रखी थी कि जिसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना मैंने संजय सर की फिल्मों को ऑब्जर्व किया था, मैंने ये डेफिनेटली नोटिस किया था कि प्रेजेंटेशन वो एक चीज़ है जिसमें सर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे. क्योंकि सिर्फ उसी वजह से आज आप उनकी फिल्में देखते हैं एंड यू फील के हर फ्रेम जैसे कोई पेंटिंग हो. ये तभी हो सकता है जब आप मेटिकुलस डिटेल्स पे ध्यान दें. एंड तो इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं ऑडिशन के लिए जाते वक्त आई मेक श्योर दैट आई लुक द पार्ट पहले तो, एंड बाकी तो फिर मेरी मेहनत और किस्मत है कि बिकॉज आई डेंट नो कि ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है आगे. एंड I just went there, I performed, and the audition went very well. Parag was happy with the audition, and I think because मैं पहली ऑडिशन में ही अपने पूरे लुक में गई थी, मेरा कोई लुक टेस्ट ही नहीं हुआ. उसके बाद मुझे सिर्फ कंफर्मेशन की कॉल आ गई थी. सो इट वाज जस्ट दैट. सो इसलिए आई सेड कि कुछ किस्मत कि मुझे इसके बारे में पता चला और मेरी फोटो वहां तक पहुंची. पर जब आपको किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बुलाया जाता है, ये हमारे हाथ में है कि हम पूरी तैयारी से जाएं, और तब हम किस्मत पर नहीं छोड़ सकते. तब हमें हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड ही रखना है. एंड फिर उसके बाद भी नहीं हुआ. सी आई ऑलवेज फील दैट नॉट बीइंग एबल टू क्रैक अ पार्ट का मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता देन नॉट बीइंग कंसिडर्ड, क्योंकि देन आई डिड नॉट गेट अ चांस और अपॉर्चुनिटी टू शो व्हाट आई कैन डू अगर मुझे कंसिडर ही नहीं किया गया. सो दैट्स अबाउट इट. It was a very amazing experience. It was another learning experience, and I am a different person and different actor altogether after Bajirao Mastani, because that's just because of Sanjay sir. That man is, my God, his vision is beyond. उनकी नजर में आ जाता है उनको क्या चाहिए. द कलर सेंस दैट ही हैज, द परफेक्शन दैट ही हैज, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन दैट ही हैज, व्हाट ही वांट्स एंड व्हाट ही डजंट, द क्लैरिटी ही हैज. एंड इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट, इट इज जस्ट चार्मिंग टू बी अराउंड हिम. इन हिज बीइंग आपको कोई वो नहीं लगता कि मैं कुछ कमाल काम यहाँ पे कर रहा हूँ. ही इज जस्ट, जो एक ईज है उनके काम में. आई थिंक इट वॉज अराउंड दैट टाइम जब मुझे इस चीज़ का जवाब मिला था कि लोग बड़े होते हैं तो वो क्यों होते हैं, उनका काम क्या होता है, अपना वो नाम बड़ा करने के लिए वो हैं कैसे. तो दरअसल वो अपने आप को बड़ा मानते ही नहीं है. एंड व्हेन आई से दिस, आई वुड से दिस फॉर रणवीर सिंह ऑल्सो, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो सेट पर खुद चल कर आए. He extended his hand, he introduced, he said, "Hi, Ranveer Singh."
And I ended up saying, of course, I'm Sukhada. And it was just about that. And it was that day, and uske baad har din, whenever he must have seen. I still remember that when he introduced himself, I said Sukhada, and he was just smiling and looking at me with all his charm. And I said that I didn't know what to say. I was very young also, and I was also, I don't know, I was feeling a little awkward. I didn't know what to say. So I said, I'll be playing your youngest sister. So he said, Shh, you're very pretty. And I was like, that just cracked me. I just laughed. And it was just that. Since then, every single day, whenever ऐसे दूर से भी कभी कोई दिख जाए तो वो दूर से हेलो करेंगे, वो फ्लाइंग किसेस देंगे, वो बगल वाले चार लोगों को कहेंगे देखो यार शी इज सो प्रिटी, एंड यू जस्ट एंड अप फीलिंग ऑकवर्ड. पर पर इट इज, आई थिंक वो वही चीज है कि आप अपना काम कर रहे हैं जो बहुत ही कमाल है. और साथ में कोई, बाजीराव मस्तानी वॉज माई फर्स्ट हिंदी फिल्म, एंड कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को भी मुझे कंफर्टेबल फील करवाने की, मुझे स्पेशल फील करवाने की. पर आई बिलीव कि आज मैं रणवीर सिंह ये नाम सुनती हूँ तो ना मुझे उनकी फिल्में याद आती है, ना किसी फिल्म का कमाल परफॉर्मेंस याद आता है. मुझे ये याद आता है कि इस आदमी ने मुझे कितना अच्छा फील करवाया जब वो आदमी मुझसे मिला. That's what it is. As a human being, आप किसी से मिलते हैं तो सामने वाला will never forget how you made the person feel. And that is the only thing that will stay. That's something the person will carry throughout his or her life. चाहे आप जो बन जाओ, आप ताजमहल बना लो और एक नया खुद के लिए, आप क्या इंसान हो वो बहुत मैटर करता है. With Deepika Padukone was the same, with Priyanka Chopra was the same. It was always, they were the first ones who introduced themselves, wherein they do not need an introduction. There used to be times, I still remember we were shooting for Diwani Mastani, and so we all went to the set for the first time. If you remember the Sheesh Mahal, जो पूरा आपने देखा है दीवानी मस्तानी में, that's a set, and वो इतना सुंदर और इतना नाजुक था कि अगर आप में से कोई भी ताजमहल देखने गया है तो वहां जाकर आपको बूटीज पहनाते हैं अपने जूतों के ऊपर, डिस्पोजेबल वाले, कि ताकि आपके जूतों से स्क्रैचेस ना आ जाए. तो हमारे सेट पर जाने वाले लोगों को बूटीज दी जा रही थी कि वो आप पहन के जाएं क्योंकि आपके जूतों से स्क्रैच ना आ जाए. इतना सुंदर सेट था. एंड वी ऑल वर लाइक मेस्मराइज्ड कि ये क्या, कौन, कहाँ पहुंच गए हैं हम. एवरीबडी एवरी सिंगल पर्सन इंक्लूडिंग संजय सर हैड दैट इन देयर आईज दैट दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज इनक्रेडिबल. तो वहां से हम लोग बालकनी में बैठे हुए थे, तो वहां से निकल के मैं ऊपर की तरफ जाने लग गई. तो मैं खड़ी थी, आई वॉज वेटिंग फॉर, मेरे आगे कोई चल रहा था, उनको वो रुके तब तक. तो मैंने बस मुड़ के देखा तो मैंने दूर दीपिका को देखा. So I just did this. So then she started walking towards me. So because she was walking towards me, her staff of some 6-9 people was walking along with her. And all the way, she only came just to say hi. Because इससे पहले हम शूट कर चुके थे, ऐसा नहीं था कि हम पहली बार मिल रहे थे. It was, and I was like, क्या जरूरत थी. And now imagine अगला scene, जब Deepika Padukone standing in front of me as Mastani, filming for Diwani Mastani's song. She's standing in front of me and she's saying, "You're looking so pretty." And I was like, what? Do you have a mirror in your vanity? Have you looked at yourself? बट अगेन, मतलब अगेन कोई जरूरत नहीं उनको ये करने के लिए कि बस हाई करके मुझे हक करके. देन शी अगेन वेंट एंड शी डिड व्हाट शी वाज डूइंग. इवन विद प्रियंका चोपड़ा देयर वर टाइम्स वी वर शूटिंग फॉर दिस अलबेला सजन. एक रंगोली है बड़ी सी, और उस रंगोली के बीचों बीच, मतलब राइट बीचों बीच नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ में मैं बैठी थी. और वहां तक वी वर शूटिंग इन द मंथ ऑफ मार्च. बहुत गर्मी थी, एनाकोंडाज, एसीज थे, और मुझ तक वो पहुंच नहीं रहा था. तो मैं अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा दे थी, बिकॉज बहुत ज्यादा, मतलब हमारे मेकअप्स मेल्ट होकर हाथ में आ रहे थे. आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम वी स्टार्टेड शूटिंग डे फॉर नाइट्स, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल दिन में शूट करना. सुनील मैदान पे शूट हो रहा था, फिल्म सिटी.
तो वहां मैं बैठी थी और किसी ने ऐसे ऐसे किया और मेरे हाथ में एक छोटा सा क्यूट सा फैन थमाया। तो मैंने मुड़ के देखा तो इट वाज प्रियंका चोपड़ा असिस्टेंट हु वाज स्टैंडिंग देयर एंड ही सेड मैम ने भेजा है। तो मैंने ऐसे देखा क्या है, तो शी सेड रहने दो तुम्हारे पास, गर्मी हो रही है। इट्स लाइक नहीं नहीं, इट्स लाइक रखो। और मैंने उसका एक वो ऐसे बटन दबाया जस्ट एंड आई ओ गॉड आई वाज इन हेवन, स्ट्रेट इन हेवन। आई वाज लाइक किसी की मुझे इस वक्त इतनी जरूरत थी, मैं बता नहीं सकती। तो मैंने ऐसे लाइक अ सिली पर्सन आई वाज लाइक इसको मैं छुपाऊं, मतलब रखूंगी कहां, एक शुरू हो जाए जैसे पल्लू में छुपा लो, रखो अपना पास। नाउ how can I ever forget these incidences ever in my life? Very आपको ह्यूमैनिटी यानी कि इतने सारे सुंदर एग्जाम्पल्स देते हैं कि बड़े बड़े नाम जो आज अपनी मतलब कहाँ हैं, पर मतलब आई कैन एक आज एक्चुअली बाजीराव मस्तानी पे पूरा अलग एपिसोड हो सकता है हमारा विद ऑल द थिंग्स आई लर्नड इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ. Yeah, glad to know that about work experience with Ranveer Singh and Deepika Padukone, the crazy couple in Bollywood. Yeah, but they are just angels, absolute angels. Yeah. Okay, what's your work experience with Sanjay Leela Bhanshali? Can you share a few words about him? I just spoke about him, so we can skip this question and because with Bajirao Mastani I've comprised it. Yeah, okay, sure. Yeah. And you worked with Sanjay Leela Bhanshali and Markan Deshpande, who released who made the masterpieces in Bollywood. What you learned from them? दो नाम completely अलग क्राफ्ट्स जिनके हैं ऐसे हैं, पर आई वुड से ऑल द डायरेक्टर्स, बीट मकरंद देशपांडे, विजय केंकरे, सैफ हैदर हसन, so many people, so many directors of mine. I'm recently working with Ila Arun and KK Raina sir. I think all of the work I've been so blessed to have worked with such amazing directors and outstanding scripts. मैंने हर जो काम किया, मतलब literally I can feel it all the more now कि हर जो काम मैंने किया, हर जो स्क्रिप्ट मैंने जिस पर मैंने काम किया था, it was a blessing क्योंकि it only made me a better actor, a better performer and definitely a better human being. क्योंकि मेरा आई फॉलो दिस वन प्रिंसिपल कि आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जब जाते हैं तो दूसरे प्रोजेक्ट में जब आप खड़े हो जाते हैं तब पिछला भूल जाना जरूरी है. पिछले प्रोजेक्ट का माहौल, पिछले प्रोजेक्ट का डिसिप्लिन, पिछले प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग ये अलग होते हैं क्योंकि इंसान अलग होते हैं, स्क्रिप्ट अलग है और सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्टर अलग है. और जैसा डायरेक्टर होता है अकॉर्डिंग टू हिम आपका यूनिट फंक्शन करता है, उस हिसाब से वो चलता है. तो ये मैं करती गई और इसीलिए आई थिंक इन सारे डायरेक्टर्स के साथ काम करते वक्त मैं जितना ज्यादा सीख पाई मैंने सीखने की कोशिश की इनसे. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आज जब मैं कोई भी नया प्रोजेक्ट करने जाती हूँ, आज तक मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया है उनकी सिखाई कम से कम एक चीज हर नए प्रोजेक्ट में मैं अप्लाई कर पाती हूँ कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में मैंने इनसे ये सीखा, मुझे यहाँ पे ये अप्लाई करना चाहिए और फिर मेरी वो परफॉर्मेंस निखरती है. So it is just because of these amazing human beings that have directed me for the project and through my life also. That's glad to know that. In which industry you love to work, Bollywood or Marathi film industry? I fall for characters and the story. मतलब हिंदी या मराठी इंडस्ट्री तो दूर की बात है, अगर आप मुझे मीडियम पूछेंगे तो मैं वो भी नहीं बता पाऊंगी कि मुझे टेलीविजन करना है, मुझे थिएटर करना है, मुझे फिल्म्स करनी है. मुझे आई फॉल फॉर कैरेक्टर्स एंड द स्टोरी.
और अगर मुझे कैरेक्टर अच्छा लग जाता है तो वो एक्चुअली मैटर नहीं करता। उस पर मैं जितनी मेहनत लेती हूँ वो भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे आधा काम करना नहीं आता। मैं मतलब मुझे आता ही ये है कि मैं कंप्लीट सरेंडर करके मैं वो बन जाऊं, फिर वो मैं चाहे जिस प्लेटफॉर्म के लिए करूं। मैं मैं वो पूरी तरह से, जैसे हमने हमारा पहला ही आपका सवाल था अबाउट मुझे एक्ट्रेस क्यों बनना था, मैं वो पूरी तरह से बनना चाहती हूँ और उसलिए मैं वो दिखना भी चाहती हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, मेरी एक फिल्म 1 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म का नाम, इट्स अ बायोपिक, फिल्म का नाम है स्वर गंधर्व सुधीर फड़के। लेजेंडरी म्यूजिशियन सुधीर फड़के, इनकी इनकी जिंदगी पर ये फिल्म है। और उनके उनके जीवन काल में, उनकी जर्नी में उन्होंने जितने बड़े नामों के साथ उन्होंने काम किया, ये सभी लोग ऑफ कोर्स उस कहानी में आपको मिलेंगे। मैंने लेजेंडरी सिंगर मानिक वर्मा जी का किरदार निभाने की कोशिश की है। अ, तो अराउंड दिस टाइम, ये जब मैं इस पर काम कर रही थी, मैंने वेट गेन किया। मैंने उनकी जब पिक्चर्स देखी तो मुझे एज एन एक्टर जो काम करना है वो तो है ही, आवाज पर काम करना है, एनर्जी पर काम करना है, ठहराव पर काम करना है। साथ ही साथ मैंने वेट गेन किया क्योंकि आई वॉन्टेड टू लुक द क्लोजेस्ट टू हर। आई वॉजन डांसिंग, और मैं ब्रिस्क वॉकिंग के लिए नहीं जा रही थी। मैं योगा पिलाटिस मैंने बंद कर दिया था। मुझे टोन्ड बॉडी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं मतलब सालों पुरानी। एंड आज के 2024 का एक एक परसेंट भी कोई ऐसा एहसास मुझे अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर, अपने पर नहीं चाहिए था जब मैं उनका कोई किरदार निभा रही थी। एंड वो आप फिल्म देखेंगे तो शायद ऐसे निकल जाएगा 5 मिनट में, क्योंकि पर मुझे जो सुकून मिला है वो करके मैं बता नहीं सकती। नाउ दैट इज अ मराठी फिल्म, पर मुझे लैंग्वेज समझ नहीं आती। मुझे बड़े बैनर्स समझ नहीं आते, मुझे पैसे समझ नहीं आते, मुझे फायदा नहीं समझ आता। मुझे समझ ये आता है कि मुझे कैरेक्टर करना है, तो अब मैं ये कैसे करूंगी एंड उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं सब कुछ कर लूंगी। सो आई थिंक मैं ये जवाब कभी, इस सवाल का जवाब दे नहीं पाऊंगी मैं कौन सी इंडस्ट्री में। कल को मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करना चाहूंगी, कल को मैं और कोई इंडस्ट्री में काम करना चाहूंगी जहाँ मैं कर पाऊँ। मैं आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ परफॉर्मर, तो आई वुड जस्ट लाइक टू परफॉर्म ऑल माई लाइफ। Okay. Did you get any offers from South film industry in Not Telugu? as yet. I would hope that would happen soon, but as of now, तो नहीं. Okay. What's your honest opinion on South Indian film industry? My God, it is incredible. It is incredible, and I feel के जो आज के जमाने में और पहले के जमाने में डिफरेंस बहुत ज्यादा ये है ना उमेश, के आज वर्ल्ड सिनेमा हमारी टिप ऑफ फिंगर पर है। आप रिमोट उठा लेते हैं और आपको आज आज आपको मेरिल स्ट्रीप याद आ गई तो आप मेरिल स्ट्रीप की फिल्में ढूंढ लेंगे। आपको जेनिफर लॉरेंस देखनी है, आपको टॉम हैंक्स को देखना है, या आपको राजा मौली सर की फिल्में देखनी है, आपको जो देखना है आप देख सकते हैं। पहले ऐसे होता नहीं था। तो मेरा ये सवाल है कि सारे आर्टिस्ट्स, हम सभी लोग जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, कि आज तो पढ़ाई के लिए आपकी यूनिवर्सिटी आपके घर पर आ गई है। आप Yeah. कितना देख सकोगे, कितना समझ सकोगे, कितना सीख सकोगे, जितना करोगे उतना कम है। और फिर वो Yeah. सीख कर यू शुड बी एबल टू अप्लाई इट इन योर वर्क। आई स्ट्रांगली बिलीव कि साउथ इंडस्ट्री की पिछली कई सालों की जो फिल्में हैं, सबसे सुंदर एप्लीकेशन ऑफ वर्ल्ड सिनेमा, अगर आप, और मैं कहूंगी कि सबसे फास्ट
और सुंदर एप्लीकेशन ऑफ वर्ड सिनेमा। दुनिया में क्या हो रहा है उसे आज के जमाने के हिसाब से अप्लाई करना, उसे रिलेटेबल बनाना, येट अपने रूट्स को ना छोड़ना इज द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ हाल ही में जितनी फिल्में हमने देखी हैं। एंड इट्स इनक्रेडिबल कि ये थॉट प्रोसेस होना, ये विजन होना, इतनी सुंदरता से उसे दिखाना, लूज एंड्स कहीं नहीं है, कहानी, स्क्रिप्ट, एक्टर्स, एवरी सिंगल थिंग इज परफेक्ट टू द टी। ये कितनी सारी फिल्में हैं जो उनकी हम देख चुके हैं। सो आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई थिंक मैं यूजुअली मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता कि साउथ की फिल्में या मराठी फिल्में या बॉलीवुड या वी आर इंडियन सिनेमा Yeah. एंड इंडियन सिनेमा इज समथिंग दैट हमारी खासियत ये है कि हमारा साहित्य इतना स्ट्रांग है, हमारे रूट्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम अगर एक्चुअली ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप बाहुबली देखें, आप आरआरआर देखें, आप कंतारा देखें, ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आप जब अपने रूट्स को पकड़ के, अपने कल्चर को पकड़ के एक नई कहानी सामने लाते हैं तो उसका असर क्या होता है। बिकॉज वी आर मोस्ट रिच इन आवर कल्चर एंड फिर वो चीजें वर्क नहीं करती जब आप वह उसी को छोड़कर आप कुछ वेस्टर्नाइज्ड करने चले जाते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन यहाँ पे रिलेटेबल नहीं बन पाता फिर। बट इट्स वाइस वर्सा। बट जब आप अपने रूट्स को पकड़कर एक नई कहानी सामने लाते हैं तो सिर्फ इंडिया क्या पूरी दुनिया रिलेट कर जाती है उससे। सो इट इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल जिससे आई थिंक हमें और एनहांस करना चाहिए। वो हम कर रहे हैं पर ये बढ़ना चाहिए। आई स्ट्रांगली फील वी शुडंट फॉरगेट आवर रूट्स। Yeah. Can you share your favorite actors and directors from South film industry? राजा मौली सर तो एक डेफिनेटली मतलब बहुत ही मेरी बकेट लिस्ट पर है कि मैं कभी सर के साथ काम करना चाहूँगी। सो ही इज डेफिनेटली देयर। Heroes, I like Ramcharan a lot. Then actresses, so many actresses. Actually, it is very difficult क्योंकि मुझे लगता है कि ये है कि अपने ना डायरेक्टर का कमाल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर राजा मौली सर की बाहुबली की बात करें तो उन्होंने उनके हीरोज और उनके एंटागोनिस्ट्स को जिस तरह प्रेजेंट किया विथ सच रिस्पेक्ट, हर एक कैरेक्टर जिस तरह उन्होंने प्रेजेंट किया वो कैरेक्टर फिर कहानी का बन जाता है और फिर हर कैरेक्टर हीरो ही लगता है आपको। फिर आपको कटप्पा भी पसंद है, फिर आपको विलन भी वैसा लगता है, आपको मतलब आप ये डिसाइफर नहीं कर पाते। बट देन आपको क्या वो एक्टर्स हर फिल्म में अच्छे लगते हैं, देन आपको फिर सोचना पड़ जाता है। सो ये खूबी है जब एक बहुत कमाल के डायरेक्टर ऐसा मैजिकल सा कुछ बहुत सुंदर सा कर देते हैं। वी ऑल आर एब्सोल्युटली प्राउड टू हैव our not like roaring through the world and my God, hats off to the whole team for that. Yeah. I know very soon you will get a chance to act in Rajamouli Star's film. You the first person who like I call after I get an offer. Thank you so much. Definitely will catch you get a chance in Rajamouli Star's film. I mean, catch you. Oh my God! Thank you so much. That's very sweet of you. Okay. Can you just tell me that I know one girl. She is a struggling actress in Mumbai. Mm-hmm. She get some offers in Marathi television and some Marathi, but she rejected that offers. Why? Because she wants to act in a Bollywood film. No, can you just tell me about that? I mean, why some people they rejected offers from Marathi film industry to act in Bollywood films? No, I think this can differ from person to person as to आपका aim and आपका goal क्या है.
see, it is very like I would say, to each to its own, and I would not judge anybody for rejecting a regional part to wanting to be in mainstream. Um, See, when it comes to regional industries, not only Marathi, also talking about Punjabi industry maybe, or भारत भर में अलग अलग रीजनल जो टेलीविजन का काम होता है, अगर आप मराठी इंडस्ट्री की बात करें एज कम्पेयर टू बॉलीवुड फिल्म समथिंग लाइक दैट, और हिंदी इंडस्ट्री, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन इट कम्स टू हिंदी, हिंदी पूरे पूरे भारत में और पूरी दुनिया में समझी जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा है. नाउ हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये है कि उसका रीच पैन इंडिया लेवल पर है, एंड it pans out in a different way. And when we say that, उसका बजट भी अलग होता है. When you enter a regional industry का कोई काम, आप वो जुबान समझने वाले लोग ही वो कोई प्रोजेक्ट देखेंगे, चाहे चाहे फिल्म हो, चाहे अब ये काफी हो गया है कि सबटाइटल्स के साथ फिल्में आने लगी है, पर टेलीविजन अभी भी नहीं है सबटाइटल्स के साथ. सो अगर एनीबडी मेक्स अ चॉइस, तो इस हिसाब से डेफिनेटली द बजट्स वेरी. तो अगर कोई ये सब सोच के इज मेकिंग हिज और हर चॉइसेस, then it shouldn't be judged, because everybody comes from their own lifestyle and their own class of living. किसी के लिए अफोर्डेबल हो सकता है, किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं हो सकता. कोई अगर ये एम करता है, स्पेशली विद एक्ट्रेसेस, आपने कहा ये एक्ट्रेस है जो आपकी दोस्त है, एक्ट्रेसेस के साथ ये अभी भी है. अगर आपको फिल्मों के लिए ट्राई करना है, तो ये चाहे दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाए, और आप चाहे जितने कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स करवा ले, ये डेफिनेटली है कि एक्ट्रेसेस का शेल्फ लाइफ कम ही होता है. सो इफ शी थिंक्स दैट शी शुड ट्राई फॉर फिल्म्स than doing Marathi television या any kind of television, for that matter हिंदी television भी, अगर उनको ऐसा लगा होगा कि नहीं मुझे फिल्मों के लिए ट्राई करना है, so that shouldn't be judged, because see, being actors, no, it is not easy. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप वे करते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, आप क्या पसंद करेंगे, आपके लिए क्या सूट करेगा, आप, और इस सब से परे जाकर आप क्या निभा पाएंगे, टेम्परामेंट की बात होती है. मतलब अगर आप मुझसे कहेंगे कि कोई कमाल का एक्टर है, तो इसने तो थिएटर करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता. बिकॉज अगर आपको थिएटर करना है, तो थिएटर का टेम्परामेंट अलग होता है. आप मतलब 1.5 महीना रिहर्सल करते हैं, तब जाके आप 2 शोज करते हैं, तो आपका मॉनिटरी मैथ्स विल नेवर एड अप, अगर वो आपको करना है तो. एंड देन अगेन, टाइम एंड अगेन आप वही शो करते रहेंगे हर बार. जब भी आप करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कोई चॉइस बना रहे हैं, तो उस चॉइस में से आप गेन क्या है ऐसा आपको लग रहा है, और वो क्लैरिटी जब आप में होती है, तब then you won't regret making your choices. Then with whatever clarity that you have, मतलब the best example is शाहरुख खान सर. वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर आ गए थे. मकरंद सर के साथ काम करते वक्त उन्होंने एक बार एक किस्सा बताया था कि उन्होंने पहली बार जब शाहरुख खान को वो मिले थे उनसे, तो उनके पास एक बड़ा सा बक्सा था, और मकरंद सर ने कहा कि मैंने उस लड़के को देखा, एंड मैंने कहा ही इज हियर टू स्टे. He had come here to be a star, and he is a star. He became one. He achieved what he wanted to achieve, and that's what it is. I think if you just know your potential, and you just know what exactly you want to follow, then I think you shouldn't think twice. You shouldn't look back, and you just dive in, like dig in completely. Be at it. Give your best and achieve it. एंड इट डजेंट मैटर, आप अगर आप मराठी टेलीविजन के स्टार हैं, इट डजेंट मैटर आपने एक भी बॉलीवुड फिल्म नहीं की है, हिंदी फिल्म नहीं की है, इट डजेंट मैटर. एज फार एज आप जो काम कर रहे हैं, वो काम करके आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो काम करके आप रात की नींद सुकून से सो पा रहे हैं, इट रियली डजेंट मैटर. Yeah. Okay, Nika, I will suggest this interview to her.
But yeah, definitely. Uh, okay, we'll go for the next question. Uh, we get to know that you are very selective in scripts. Uh, every time you don't go for commercially. Sometimes you will act with your satisfaction. There is any reason behind that? Yeah, like I said, that mm my characters attract me, Okay. and then I do not focus on the medium or the platform. So if I like the script and if I like the character, then be it any form. And I also believe that because I've been doing working on for various mediums, I have been learning constantly. मतलब अगर मैं थिएटर कर रही हूँ तो आई परफॉर्म्ड एट पृथ्वी थिएटर more than 100 times, मतलब in a period of 10 years, which is intimate theater. मतलब आप हाथ बढ़ाएं तो ऑडियंस को छू पाएंगे. और मैंने ब्रॉडवे प्ले भी कर लिया जहाँ पे आप चलते चलते उड़ रहे हैं और आप बोलते बोलते गाने लग जाते हैं और आप दूर से चींटी जितने दिख रहे हो क्योंकि इतना बड़ा ऑडियंस आपके सामने बैठा है एंड इट इज लाइक अ मूवी बीइंग प्लेड ऑन स्टेज. इन ये इस इन दोनों एग्जाम्पल्स में सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर लाइव परफॉर्मेंस है. रेस्ट कुछ भी सेम नहीं है. कोई Okay. डायनामिक सेम नहीं है. ना आप वॉइस मॉड्यूलेशन की बात कर सकते हैं क्योंकि या तो माइक मतलब माइक सिस्टम ही नहीं है क्योंकि पृथ्वी के अकॉस्टिक्स इतने खूबसूरत हैं वहाँ पे माइक की ज़रूरत ही नहीं है. और यहाँ पे आपको दो दो माइक्स सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं क्योंकि स्टेज इतना बड़ा है और लोग इतने हैं ज़्यादा कि आपका अगर एक माइक बंद पड़ जाए तो शो रुक जाए. So it is, matlab, this is one example, but the point that I'm trying to make here is with different mediums, you keep getting a better performer, is what I believe. And hence, I have never focused on, like I said, I have never focused on मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं या ये बैनर बड़ा है या मेरा रोल कितना इम्पोर्टेंट है या मैं लीड हूँ या नहीं हूँ. ये कभी मैटर नहीं किया somehow. And maybe that's the reason that would answer your question. Yeah. Along with acting, singing, and you will write the poetry. Can you just a few? Can you sing a song? Yeah, I think singing is something that's in my genes because of my mom. Uh, uh, और मैं बीच में because while I was shooting for स्वर गंधर्व सुधीर फड़के this film of mine, मैंने around that time थोड़ा सीखना शुरू भी किया था classical singing, but again my schedule took over my big plans और वो परसों नहीं हो पाए. पर सो ये पूरा प्रीफेस इसलिए है कि कुछ ज्यादा उम्मीदें मत लगाइए. मैं बस गाती हूँ, मतलब ऐसे कोई कमाल गाती हूँ ऐसा नहीं. मुझे गुनगुनाना अच्छा लगता है, मैं गाती भी हूँ. ओके नाइस. सलोना सा सजन है और मैं हूँ जिया में एक अगन है और मैं हूँ सलोना सा सजन है और मैं हूँ. Yeah, so nice to hear. ये फिर भी ये उन गानों में से नहीं है जो मैं गाती रहती हूँ. ये गाना मेरे 2 दिन से कान में बज रहा है जो मैं सुन भी नहीं रही हूँ. Just that's how I'm thinking to it. A very peaceful voice. It's very pleasant when you are singing. Thank you so much.
Voice modulation is very important for actors. Yes, it is. Yeah, you have a good voice. Thank you. I got good friends who work in the industry as voiceover artists and who are known for their voice. My husband was a celebrity RJ years back for Radio City as well as Radio Mirchi. His name is Abhijit Khandtekar. So he is a professional anchor and a professional voiceover artist. So उनसे भी बहुत सीखते रहती हूँ मैं. And so yeah, I'm just blessed to have very very good and talented people around me. इसका result ये है, मुझे कुछ खास नहीं आता. Yeah. Okay. Actually, now we can talk about the Bollywood's darkest secret. Darkest secret. Not only in Bollywood, it's a darkest secret for every film industry. Can you just share your opinion on casting coach? I don't have any opinion because I do not have any experience. So I would not like to talk about something that it's something that's hearsay. So I would skip that. I mean, some of the actors and their fear for casting coach. Can you just advise them how to get rid of casting coach? No, that's what I'm saying. That we should skip this question because I have no experience about it, nor I have heard this from somebody. And also, I strongly feel that it actually depends on person to person कि आपका approach भी क्या है और सामने वाले का क्या approach है. So and what leads to what you just don't know about it. So I think I won't be able to add on to anything to this question. So इसलिए I would suggest that we should skip this. Yeah, okay, no Yeah. problem. Yeah, okay. You are a stage actor and you are a television actress and you are the silver screen actress. Okay, can you just tell me the difference between camera acting and theater acting? Uh, okay. Um, See, the biggest difference here is theater is something that जिसमें retakes नहीं होते. आप अगर आपका परफॉर्मेंस शुरू हो गया है तो चाहे जो हो जाए आपको उसे निभाकर कहानी को निभाकर अपने साथ वाले को एक्टर्स को संभाल कर आपको इंटरवल तक और इंटरवल के बाद नाटक खत्म होने तक आपको उसको निभाना है. यहाँ पे रीटेक्स नहीं होते. और कैमरा के साथ ऑफ कोर्स रीटेक्स होते हैं. आप रुक सकते हैं, आप कोई एक चीज ऐड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक मिनट ये फिर से करते हैं, ये आई कैन डू इट अ लिटिल बेटर. बट हैविंग सेड दैट theater comes from with me it comes from physical memory. मतलब आपकी रिहर्सल जितनी ज्यादा रिहर्सल की है उतना आपका परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है. बिकॉज देन आप उस ग्रूव में रहते हैं. आपके वो हर छोटी चीज देन इट जस्ट स्टेज. इट इज आई फाइंड इट अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ staying with the story, staying with the script, with the character that you're playing for a month, 2 months. एंड धीरे धीरे वो एक पेपर पे जो कैरेक्टर आपने पढ़ा होता है वो एक्चुअल इंसान में तब्दील हो जाता है. वो and I've always found that process so fascinating and it has always stumped me. I never see it coming कि ये कैरेक्टर जो मुझे दिया गया था ये पहली बार मैंने पढ़ा था और आज जब मैं शो के दिन खड़ी हूँ तो मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ. मैंने ये समझा, मेरी अटैचमेंट मेरे मेरी अटैचमेंट मेरे को कैरेक्टर्स के साथ वैसी हो गई है जैसे इस कैरेक्टर की होनी चाहिए. एंड इट्स जस्ट ब्यूटिफुल. वो बहुत एक सुंदर प्रोसेस है और उस पूरे प्रोसेस में आप एक बहुत ही शार्प एक्टर बन जाते हैं. आप में एक अलग सी कॉन्फिडेंस आ जाती है कि अब इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं ना कर पाऊं. ये जो मैंने चीज अभी कही वो आपको उस परफॉर्मेंस के बाद हर एक्टर को आती है.
उस फेज के लिए। पर फिर अगली बार अगला काम जब आता है तब आप फिर से वही, क्योंकि स्क्रैच से शुरू करते हैं तो आप फिर से उसमें सेल्फ डाउट में रहते हैं कि ओके अब ये कैसे करना है और कैसे हो पाएगा। पर आई थिंक ये वो प्रोसेस है। और जब आप कैमरा के लिए काम करते हैं वो अपने आप में एक अलग सुंदर सा प्रोसेस है, क्योंकि कैमरा भी अलग है। अगर आप फिल्म कर रहे हैं तो आपको स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है, अगर आप टेलीविजन कर रहे हैं तो आपको लिटरली उस दिन स्क्रिप्ट मिलती है। सो जिसका वो नहीं रहता, आप यू हैव टू बी वेरी क्विक एंड देन हेंस वो कहते हैं कि एक बार कैरेक्टर पकड़ में आ जाए तो तो डिलीवर करना आसान होता है। मतलब मुझे इस बात से बहुत बड़ी कोफ्त है जब लोग टेलीविजन एक्टर्स को डिमीन करते हैं, Okay. क्योंकि आसान नहीं है डे इन डे आउट ट्रैवल करके उस जगह पहुंचना और टाइम कंस्ट्रेंट्स में वो कर दिखाना जो आप एक फिल्म के लिए बहुत आराम से स्पेस लेके कर पाते हैं। मैं जब अहिल्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई के लिए मैं अपने शो के लिए शूट कर रही थी, अराउंड दोज टाइम्स इट वाज अ वेरी बिग शो ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटीज। अराउंड दैट टाइम आई रिमेम्बर के कई सारे ऐसे शॉट्स, ऐसे सीन्स डिजाइन किए जाते थे जो सीन्स हमने बड़ी बड़ी फिल्मों में देखे होंगे कि ये कैमरा यहाँ से आया, ये यहाँ गया, या आज राउंड ट्रॉली सेटअप है, या आज आप ट्रैक पर चलते चलते अपनी कुछ लाइंस बोल रहे हैं और कैमरा पीछे जा रहा है। ये हम दिन के 4 सीन करते थे और बखूबी निभाते थे। सो आई थिंक एक एक्टर को टेलीविजन का सेट जितनी कैमरा की प्रैक्टिस देता है उतनी Yeah. प्रैक्टिस किसी को नहीं मिल पाती। मतलब अ टेलीविजन एक्टर इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एक्टर व्हेन इट कम्स टू कैमरा, क्योंकि आदत इतनी हो गई कैमरा के सामने कि मुझे लिटरली इट बिकम्स माय सेकंड नेचर। सो सो आई थिंक नो मीडियम इज, हर मीडियम अपनी अपनी नई चीज, अपनी चीज एक सिखाता है और अपनी नई चीज देता है ऑडियंस को भी। सो और हर मीडियम मुश्किल है, आप ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से आसान है। हर एक के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी तैयारी करनी पड़ती है। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम वी रिस्पेक्ट everybody's work. Why to demean anybody's work? Uh, Now I get to know the difference between camera acting and theater acting from your words. I still tried because it is actually a lot more practically explained than Very theoretically. explanation. Yeah. No one will say with this much patience. Yeah. Can you just give some advice for a film aspirants who want to make their career in film industry, especially in acting? I would say that the more you equip yourself with as many skills as you can, the more it will help you to get casted for various parts. आप जितनी लैंग्वेजेस बोल पाएंगे, जितनी सीख पाएंगे आप सीखिए जो आपके इंटरेस्ट ऑफ एरिया के लिए रेलेवेंट है। अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं तो हिंदी जुबान इतनी सुंदर है और इतनी वेरीड है। मतलब उर्दू नुमा हिंदी अलग है, मिथिला वाली हिंदी अलग है, भोजपुरी हिंदी अलग है। ये अलग अलग लहेजे जो हैं ये समझें। आप जितना सीखेंगे उतना आप अप्लाई कर पाएंगे। आप जितने स्किल सीखेंगे, अगर आप डांस कर सकते हैं, आप गा सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग जानते हैं, आप मार्शल आर्ट्स जानते हैं, आप चाहे जितना सीख पाए, ये आपके लिए एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत एनरिचिंग होगा। और आपके लिए कल को कोई किसी चीज के लिए, किसी पार्ट के लिए आपको कास्ट करना हो तो कम से कम आपकी स्किल्स के लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बाकी कई चीजें वैसे ही होती हैं एक्टरों की। एन एक्टर इज ऑलवेज टू यंग और टू ओल्ड फॉर द पार्ट, टू टॉल और टू शॉर्ट, टू फैट और टू स्लिम, टू फेयर और टू डार्क, always. And we all go through a certain phase wherein we feel कि
अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम बॉर्न विद इट। पर ये जो है, ये तो हमारे हाथ में, जो हमें करना चाहिए डेफिनेटली। एंड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से इज, आपकी फैमिली के साथ आप अपना बॉन्ड जितना स्ट्रांग बनाएंगे, जितना स्ट्रांग रखेंगे, जितना मजबूत बनाएंगे, वो विल एक्ट एज योर स्पाइन। कि जब आप फेलियर्स का सामना करें तब आप अकेले नहीं होंगे, और फिर वो फेलियर उतना डार्क नहीं लगेगा जब आपके साथ अपने लोग होंगे। A lot of times ऐसा हो जाता है कि हमारी हमारी शेड्यूल्स ऐसी होती हैं कि हम थक जाते हैं। देन कई बार जिस प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना ज़्यादा हो जाता है। एंड देन वी जस्ट थिंक कि हमारी ज़िंदगी यही है। मतलब कौन घर पे कॉल करे, कौन बताए कि मैं आज खाने पे नहीं आ रही हूँ, कौन मैं थक गई हूँ, मतलब समझ लेंगे घर वाले। पर इस सब के पीछे, ये सब करते करते आप ये भूल जाते हैं कि किसी दिन जब आप अकेले होंगे तो आपकी फैमिली के अलावा और कोई नहीं होगा जो अनकंडीशनली आपके साथ खड़ा है और आपको याद दिलाएगा कि आप बहुत पेशेंस के लिए, और आप जैसे दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि हर इंसान, हर पर्सनालिटी यूनिक होती है, और इसकी याद आपको आपकी फैमिली के अलावा कोई नहीं दिला सकता। एंड that is something that you need the most to survive, because आपने 100 काम अटेम्प्ट किए होंगे तो 10 मिले होंगे, ये हर एक्टर के साथ है। तो जब वो 90 रिजेक्शंस है ना, और वो 90 रिजेक्शंस आपके दिल दिमाग पर काम करते हैं ये बताने का कि यू आर नॉट गुड इनफ। एंड हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने रूट से कनेक्टेड रहें, बिकॉज व्हेन दैट हैपेंस यू आर स्ट्रॉन्गर। Yeah. सॉरी, Yeah, no problem. it's a call. Yeah, because when that happens you are extremely strong to again stand, एंड अगेन नए काम के लिए आप खड़े हो जाते हैं उसी स्पार्क के साथ, क्योंकि आपको पता होता है आप अकेले नहीं हैं। और ये मैं डेफिनेटली बताना चाहूंगी यंगस्टर्स को, क्योंकि ये जब तक आप समझेंगे तब तक आप वो मिस कर चुके होंगे। So trust me when I say this, if you work on it now, you'll end up being a lot stronger than you would be. Yeah. Sukta, can you just advise some youngsters how to face any of the failure, especially in film industry? I think it is ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर आप कोई पार्ट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर नॉट गुड इनफ। Yeah. एक रोल मिलना आपको, एक पार्ट आपको, आप इस कैपेसिटी में आए कि वो आप कर पाए, इसके लिए देयर आर लाइक 10,000 कैलकुलेशंस दैट आर हैपनिंग। कई बार ये हो सकता है कि आप खुद बहुत कमाल के एक्टर हैं, पर आप जिसके साथ पेयर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप यू आर लुकिंग टॉलर देन हिम, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। एंड नॉर इट इज अ नेगेटिव एसेट टू हैव, इट इज समथिंग रियली गुड एक्चुअली कि आपकी हाइट इतनी सुंदर है, पर ये यहाँ वर्क नहीं कर रही। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट माई पॉइंट इज हियर इज, आपने जो भी काम के लिए चाहत रखी और वो आप अगर नहीं पा पाए तो उसका पूरा बोझा खुद पे मत डालिए कि मतलब आई एम नॉट गुड इनफ या आई शुड हैव डन दिस। यस, आई अंडरस्टैंड कि हमें ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि हाउ बेटर आई कैन गेट, कि ऑलराइट ये इस बार ये हुआ था तो अगली बार शायद मैं बेटर दिखूं, शायद मैं बेटर स्क्रिप्ट पे ज्यादा काम करके जाऊं, शायद अगर आप रीजनल लैंग्वेज आपकी कोई है और आप हिंदी के लिए ट्राई कर रहे हैं,
You have to work on your language, on your accent. आपका रीजनल एक्सेंट शो ना करे, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. छोटी छोटी चीजें हैं. मतलब अगर आप, जैसे मैंने कहा कि आप जितना खुद को इक्विप करेंगे उतना आप ज्यादा एक्सेसिबल रहेंगे. और उसके बाद भी अगर आप कास्ट नहीं हुए तो ये कभी मत भूलिए कि देर आर अ लॉट मेनी अदर थिंग्स दैट माइट बी रिस्पॉन्सिबल कि आपकी कास्टिंग नहीं हुई. ये अपने पर वो बोझा डालकर उसका बैगेज लेकर मत चलिए. क्योंकि ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बिकॉज खुद मुझे कई बार लगा है कि कोई पार्ट मुझे चाहिए था, कोई पार्ट मुझे मिलना चाहिए था, या मुझे पूछा क्यों नहीं जाता. कई बार फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने हिंदी थिएटर ज्यादा किया है या हिंदी प्रोजेक्ट्स में ज्यादा रहे हैं, तो कई बार हमसे एक्टर्स से बिना पूछे ये एक नोशन बन जाता है कि इसका मतलब अब मैं मराठी में काम नहीं करती हूँ क्योंकि मैं हिंदी कर रही हूँ, तो मुझे ऑफर नहीं किया जाता. तो मैंने इंटरव्यूज में कहा है, मैंने जब मैं लोगों से मिलती हूँ तब कहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. मुझे करना है मराठी में काम, कुछ हो तो मुझे जरूर बताना. इसकी शर्म मत रखना. Okay. इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं होती जब आप किसी से मिलके कहते हैं कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मैं किसी दिन आपके साथ काम करना चाहूंगी. आप जब इतनी सच्चाई से और इतनी ट्रांसपेरेंसी से किसी से बात करते हैं, अप्रोच करते हैं किसी को, आई डोंट थिंक इट गोज अननोटिस्ड. तो I would only say that you just be at it and do not get bogged down by failures. ये वही है जिनकी वजह से आप अपनी सक्सेस को ज्यादा वैल्यू करेंगे. Yeah, okay. So Kada, can you just tell me that if a young aspirants want to learn acting, uh, which process you will suggest? I mean, camera acting or theater acting? You know, some of the people will suggest that you have to learn acting in some famous film institutes. They will say like that. What you suggest? Camera acting or theater acting? नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आई अग्री. क्या ये मैंने भी सुना था, पर मुझे ये तब भी ऐसा लगा था कि मतलब आपको अगर गोरेगांव से वर्सोवा जाना है Okay. तो आप थोड़ी कांदिवली होकर जाएंगे. आपका डिसाइडेड है ना वर्सोवा जाना है. Yeah. तो अगर आपका ये डिसाइडेड है कि मुझे थिएटर करना है तो आप थिएटर एक्टिंग सीखेंगे. अगर आपका ये डिसाइडेड है कि मुझे फिल्मों में काम करना है तो यू लुक फॉर दैट कोर्सेस. आपको ये करके वो करने का कोई मतलब नहीं बनता. थिएटर अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली एज एन एक्टर आपकी स्किल्स एनहांस हो सकती हैं, आप शार्पर हो सकते हैं. पर नेवर डू दिस कि मैं अगर थिएटर करूंगा तो मुझे थिएटर इसलिए करना है क्योंकि मुझे फिल्म्स करनी है, कि मैं थिएटर करूंगा तो आई विल बी कंसिडर्ड एज अ सीरियस एक्टर और फिर मुझे फिल्मों के लिए पूछा जाएगा. बिकॉज दैट इज अ वेरी फार फेच्ड जैकपॉट वाली पॉसिबिलिटी कि आपका प्ले ऐसी किसी जगह पर हो रहा है, जैसे पृथ्वी जैसी कोई जगह जहां पे फिल्म मेकर्स आते हैं और उन्होंने आपको स्पॉट किया और फिर आपको फिल्म के लिए पूछा. पर उससे बेहतर डेफिनेटली ये होगा कि आप ये तय करें कि आपको किस किस्म का एक्टर बनना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें. बिकॉज ओनली दैट वुड मेक सेंस एंड सेव टाइम ऑल्सो. अलोंग द प्रोसेस अगर आप थिएटर कर पाए, आप अच्छे बड़े डायरेक्टर्स जैसे मकरंद सर हैं, इन डायरेक्टर्स के साथ अगर आप काम कर पाए, डेफिनेटली वो एनहांस करेगा. पर थिएटर को सीढ़ी बनाकर फिल्मों की तरफ जाना इज समथिंग दैट आई वुड नॉट सजेस्ट. Okay. Thank you so much, Sudha. Thanks for giving your valuable time here. Because being a Marathi and Bollywood actress, uh, giving I'm believing it's a dream. You know, you are the first actress I'm interviewing. That too, you are a Bollywood actress. Recently, I had interviewed an architect in Germany. Uh-huh. I just expected that I will do the interview with a Bollywood actress for second interview. Thank you so much. Thank you for having me over. I always like to share bits of myself and
connect and converse with people. Thank you so much. I had a great time.